Hello students, my name is Gargi and today in this video lecture we are going to start our chapter The Selfish Giant. Okay, so let's start with the summary. So this chapter is about a giant who has this beautiful garden and there are these children who wants to play in that garden, right? So this giant is very selfish, as the name of the chapter goes. This giant is selfish and he doesn't want all the children to play in the garden. So what happens after next? Let's read about the chapter in our summary. The story starts with the children playing in the garden of the giant every afternoon after coming from school. जब भी वो स्कूल से बच्चे आते थे तो they used to stop and play in that garden of that giant. The garden was lovely, large with soft grass and fruit trees. The trees bore rich fruits and birds sang sweetly sitting on them. So the garden was very beautiful, right? It has soft grass, trees that bore very sweet fruits. ठीक है, perfect garden था, एक बहुत अच्छा सुंदर सा garden था. One day after 7 years, the giant came back. He was staying with his friend, the Cornish ogre. The children were scared to see him. He saw the children playing and said that he would not allow anyone to play here as it was his own garden. तो giant काफी टाइम से अपने garden में नहीं था, right? So after 7 years he came back. वो अपने friend के पास गया था, Cornish ogre के पास जो UK में था. तो वो अपने friend को visit कर रहा था. So he came back after 7 years और जैसे ही वो आया उसने देखा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं and he said that he is not going to allow this. वो उसका गार्डन है और वो वहाँ कभी किसी को खेलने नहीं देगा या किसी को आने भी नहीं देगा. He built a wall around it and also put a notice board. The notice board displayed a warning on it. Trespassers will be prosecuted. कि वो क्या करता है, एक वॉल लगा देता है, ठीक है, पूरे गार्डन के अराउंड एक वॉल लगा देता है बड़ी सी और एक बोर्ड लगा देता है बाहर कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. मतलब अगर कोई बिना परमिशन के यहाँ आएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा. The children became sad as they had no other place to play. अब बच्चों के पास और कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए, ठीक है, बिकॉज रोड पे सब डस्ट थी, वहाँ पे लोग आते जाते रहते थे, तो इतना ओपन और इतना अच्छा स्पेस नहीं था वहाँ कोई भी बच्चों के पास खेलने के लिए और वो गार्डन एक परफेक्ट प्लेस था बच्चों के खेलने के लिए. सो दे वर सैड कि अब वो कहाँ खेलेंगे. They would wander around the high walls of the garden and remember the beautiful garden inside them. अब वो बच्चे क्या करते थे, वॉल के आसपास घूमते रहते थे और वो इमेजिन करते रहते थे कि जब वो वहाँ खेल पा रहे थे तो कितना अच्छा लगता था, उन्हें कितना मज़ा आता था, वो टाइम कितना अच्छा था. The spring season came and there were blossoms and little birds all around. But it was winter in the giant's garden and there were frost and snow. अब विंटर सीजन आया, ठीक है, सब जगह फ्लावर्स थे, प्लांट्स ग्रो कर रहे थे ना, फ्रूट्स थे, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, द नेचर वाज सो ब्यूटीफुल. बट जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर सीजन ही था, ठीक है, वहाँ कोई न्यू लीव्स नहीं थी, कोई फ्लावर्स नहीं थे, अभी भी वहाँ पे विंटर सीजन ही चल रहा था. In the absence of children, birds also did not sing. Once a flower bloomed out of the grass, but after seeing the notice board, it also went back to sleep. अब जैसे ही जब उसने बच्चों को आने से वहाँ मना कर दिया, ठीक है, तो स्प्रिंग ने भी आने से मना कर दिया. स्प्रिंग ने कहा कि अब अगर बच्चे वहाँ नहीं है तो मैं भी वहाँ नहीं आऊँगी. एक बार एक फ्लावर ग्राउंड से निकला और जब उसने वहाँ नोटिस बोर्ड देखा कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड तो उसे इतना ज़्यादा सैड फील हुआ और वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया कि वो वापस ग्राउंड में चला गया. Then came the north wind and hailstorm. Due to the giant's selfishness, autumn's golden fruits also didn't come to his garden. अब वो इतना ज़्यादा जाइंट की जो सेल्फिशनेस थी वो देख के जो ऑटम के जो गोल्डन फ्रूट्स थे वो भी वहाँ नहीं आए. मतलब ऑटम सीजन भी नहीं आया, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंटर थी और वहाँ पे सब जगह स्नो थी और नॉर्थ विंड थी. Then one morning the giant heard sweet and lovely music. It was a linnet singing outside his window. अब जाइंट को होप तो थी कि कभी ना कभी तो स्प्रिंग आएगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट विंटर ही रहती है, स्प्रिंग आती ही नहीं है. फिर एक दिन क्या होता है, उसे
एक बहुत स्वीट सी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा लवली म्यूजिक सुनाई देता है, सूदिंग म्यूजिक सुनाई देता है। और उसने काफ़ी टाइम बाद ऐसा म्यूजिक सुना होता है, क्योंकि विंटर में तो वहाँ कोई बर्ड आती ही नहीं है। बट सडनली जब वो म्यूजिक सुनता है इतने टाइम बाद, तो वो बाहर आके देखता है, क्योंकि ही इज़ क्यूरियस कि अब ये साउंड कहाँ से आया है। और वो क्या देखता है कि देयर इज दिस लिनेट, लिनेट इज अ बर्ड, लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। द हेल एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड एंड ही कुड फील द स्प्रिंग। हेल भी रुक गया है ना, और नॉर्थ विंड भी रुक गई, वो ठंडी जो हवा चल रही थी वो भी रुक गई, और वो स्प्रिंग को फील कर पा रहा था, वो जो वार्मथ है ना स्प्रिंग की, वो फील कर पा रहा था। He saw that the children came into his garden through a little hole. उसने क्या देखा कि बच्चे जो थे वो एक होल हो गया था वॉल में, उसमें से घुस के और अंदर आ गए उसके गार्डन में। The children were sitting on the branches of trees and trees were blossoming. He also saw the birds flying and heard them chirping. उसने देखा कि जहाँ जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रीज ब्लॉसम हो रहे हैं, वहाँ पे फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, न्यू लीव्स आ रही हैं। तो जहाँ जहाँ पे बच्चे थे वहाँ पे ही स्प्रिंग आ रही थी। The flowers had also come up, but to his surprise, in one corner there was still winter. He saw that there a young boy was standing and he was not able to reach the branches of the tree. The tree lowered its branches but still he could not climb. उसने देखा कि पूरे गार्डन में स्प्रिंग है, एक कॉर्नर में अभी भी विंटर है। और वहाँ विंटर होने का क्या रीज़न था कि वहाँ पे एक ट्री था जिस पे एक छोटा सा बच्चा था, वो चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही छोटा था। ट्री ने अपनी ब्रांचेस भी लोअर की, बट वो इतना ज़्यादा छोटा था कि वो लोअर करने के बाद भी वो उसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। At the scene, his heart melted. His heart मतलब giant's heart. It melted and he realized that he was really very selfish. उस टाइम उसे realize होता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा selfish हो रहा था इस पूरे टाइम। He decided to put that boy on the top of the tree, pull down the walls and allow children to play here forever. उसने तभी डिसाइड कर लिया कि वो उस बच्चे को ट्री पे बिठाएगा, ट्री की ब्रांच पे बिठाएगा, और वो जो उसने वॉल्स बनाई है उन्हें वो तोड़ देगा, और वहाँ पे हमेशा बच्चों को खेलने के लिए all the children are always invited there. But when the children saw him, they ran away and the garden became winter again. However, that little boy did not run as he was weeping. The giant put him on the top of the tree and the tree blossomed at once. He kissed the giant. The other children realized that the giant is not wicked. Came back. अब जब बच्चों ने देखा कि जाइंट आ रहा है, they got scared and they started running away from him. But वो जो छोटा सा बच्चा था, वो उसके आंखों में इतने ज़्यादा आंसू थे कि वो जाइंट को आते हुए देख ही नहीं पाया, ठीक है। और जाइंट आया, पीछे से उसने उठा के उसको ट्री पे बिठा दिया, और जैसे ही उसने उसे ट्री पे बिठाया, द ट्री स्टार्टेड ब्लॉसमिंग, ठीक है। और तब बच्चों को रियलाइज हुआ दैट जाइंट इज नॉट विकेड एनीमोर, वो अब इतना इविल नहीं रहा है जितना वो पहले था, ठीक है। और सारे बच्चे ये देख के वापस आ गए। The giant used to play with the children every afternoon, but that little boy was nowhere to be seen. अब डेली बच्चे आते थे, वहाँ खेलते थे, जाइंट वहाँ बैठ के उनको देखता था, उनके साथ खेलता था, बट दैट वन चाइल्ड जिसे उसने उठा के ट्री पे बिठाया था, वो बच्चा कहीं नहीं नजर आता था उसको। दैट चाइल्ड वाज nowhere to be found. सब जगह ढूंढा उसने, बट वो चाइल्ड उसको नहीं मिला। As the years went by, he grew very weak. जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जाइंट ओल्ड होता गया, बूढ़ा होता गया, और उसकी स्ट्रेंथ भी अब इतनी नहीं थी, तो वो वीक हो गया। One winter morning, he saw a lovely tree with white blossoms in a corner. ठीक है, तो एक सुबह क्या होता है, वो देखता है कि कॉर्नर में बहुत सुंदर सा पेड़ है, लवली ट्री विद वाइट ब्लॉसम्स इन द कॉर्नर। वाइट कलर के उसके ऊपर फ्लावर्स खिले हुए हैं और बहुत सुंदर सा एक ट्री है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर गोल्डन एंड द लिटिल बॉय स्टूड अंडर इट। और उसे वहाँ पे वो बच्चा दिखाई देता है जिसे उसने फर्स्ट टाइम जब वो मिला था उसको, जिसने पेड़ पे बिठाया था, वो बच्चा उसे फर्स्ट टाइम मिलता है वहाँ पे। द बॉय वॉज वुंडेड विच मेड द जाइंट वेरी एंग्री। जब उसने देखा कि वो बच्चे को चोट लगी हुई है, हाथ पे उसे चोट लगी हुई थी, ठीक है, तो वो देखकर जाइंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे से उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, बिकॉज दैट चाइल्ड ही किस्ड द जाइंट,
है ना, तो उसको वो बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है उस बच्चे से, ठीक है। और जब वो देखता है दैट ही इज़ वुंडेड, उसको हाथ में चोट लगी हुई है, तो जायंट को बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ जाता है। He told the boy that he will slay the man who has harmed him. The boy told him that these were the wounds of love. अब जायंट उसे बोलता है कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है, जिसने भी उस बच्चे को चोट पहुंचाई है, वो उसको मार देगा। बट वो बच्चा क्या बोलता है that these are the wounds of love. The boy smiled and asked the giant to come to his garden. Later, the children found that the giant dead under the tree covered with white blossoms. तो वो बच्चा उसको बाद में कहता है कि now I want you let me play in your garden. Now I want you to come and play in my garden of heaven. That means that child, it was actually God, है ना। और वो उसे कहाँ ले जाते हैं, अपने साथ हेवन ले जाते हैं, ठीक है। और जब बाद में बच्चे आते हैं तो वो देखते हैं कि जायंट वहाँ पे ही डाइड, और उसके ऊपर वो जो वाइट ब्लॉसम्स थे उस ट्री के, वो पूरे उससे कवर्ड है। ओके, सो दिस वाज अ स्टोरी, a really great story it was. Word meanings, let's look at the word meanings. Cornish ogre. Cornish ogre is a giant in Cornwall. Cornwall कहाँ पे है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में। ओके, ओगर क्या होता है, लेजेंड्स और फेरी टेल्स में जो स्टोरीज होती हैं उसमें अ क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग पर्सन होता है। ग्रफ, ग्रफ मीन्स रफ। एंड ट्रेसपासर्स, ट्रेसपासर्स होता है जो किसी की परमिशन के बिना कहीं पे भी चला जाता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में चला जाता है। प्रोसिक्यूटेड, ट्रायल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में ले जाके किसी पे ट्रायल करना, या फिर यहाँ पे इसका सेंस क्या है, पनिश्ड से है। केसमेंट, केसमेंट क्या होता है बच्चों, जो विंडो डोर की तरह ओपन होती है ना, उसको केसमेंट कहते हैं। स्टोल अप, स्टोल अप मतलब टू मूव समवेयर क्वाइटली एंड सीक्रेटली। वो जब बच्चा वहाँ खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो जायंट को आते हुए नहीं देख पाता है, दैट टाइम द जायंट स्टोल अप, मतलब वो बहुत धीरे से साइलेंटली उसके पास आता है। ओके, सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स। लेट्स लुक एट अ few question answers. Okay, so question number 1 is why is the giant called selfish? Giant को selfish क्यों बोला है? Because the giant did not let any of the children play in his garden because it was his own garden and he did not want to share it. Okay, so that's why he was selfish and he put up a sign that trespassers will be prosecuted. ठीक है, this shows that giant was very selfish at the beginning of the story. Why was it still winter in one corner of the garden? जब एक उसने देखा कि सारे बच्चे गार्डन में हैं तो पूरे गार्डन में स्प्रिंग है, but that one corner was still, it still had winter. As the children played in the garden, the giant noticed that in one corner of it there was a tree that was still covered with snow and frost. अभी भी एक tree था जो snow और frost से covered था. The north wind blew strongly and was roaring over it. The giant came closer and noticed a small boy standing in front of it, who was so tiny that he could not climb the branches of the tree. तो वो बच्चा ट्री पे नहीं चढ़ पा रहा था and the child was unhappy. Okay, so because of that unhappiness, उस बच्चे का जो sadness थी उसकी वजह से वहाँ पे अभी भी winter थी, spring नहीं आ पा रही थी. Okay, as the tree remained untouched by the child, winter still prevailed in that corner of the garden. अभी भी उस tree को उस बच्चे ने touch नहीं किया था, मतलब he was not happy. That's why वहाँ पे अभी भी क्या थी, winter थी. Okay, so this was our chapter everyone, the summary, question answers and word meanings. Read the poem, read the chapter. It's very interesting, very nice story, and you learn a lot from it. So when you read the chapter, the word meanings are going to help you. All these word meanings are going to help you in the chapter, and I hope you understood whatever I taught you today. So we'll meet in our next lecture. Thank you.